The only thing because of which I am happy is that whatever my mindset is, so through are these conversation and through that Google Sheet, I am able to deliver. This is helping me in changing my mindset. We set a target of revision. भले ही वो एक दिन लेट हुआ हो, क्योंकि हमने 4 दिन का गोल सेट किया था कि not only were you able to complete your revision in 5 days, you have also started the second cycle of revision within this week. How are you feeling about this new role? Feeling good. Not that much excited and not. I'm feeling same. There is not much difference in that feeling. कहाँ से आ रहा है ये इनहिबिशन? क्या है रीजन इस नाखुशी का? नहीं खुश हूँ ना, वैसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो वैसा कुछ नहीं, बट आई एम हैप्पी that I got promoted and now getting transferred. Perfect. Your life is changing, and you should embrace it. Correct. है ना? पूरी ताकत के साथ इसे embrace करना चाहिए. हाँ भैया. शुरू करें? हाँ बिल्कुल. ठीक है, perfect. Did you check that comment जो वीडियो पे आया था सबसे पहले? मैंने आज भेजा है स्क्रीनशॉट देखा था मैंने. हाँ, which means people are noticing you. Correct. है ना? People are noticing your channel. That is more important. No, क्या है? It is you who is on the thumbnail, and it is your journey which we are recording. है ना? Correct. So people are interested in you. Correct. And your journey. Correct. है ना? So अच्छी बात है. At least you are inspiring a few of them. है ना? Correct भैया. एक ने आज पूछा भी, which means they might have gotten inspired by your sessions. Correct. मुझे तो अच्छा लगा यार. Other hand, they are inspired by your guidance. So, it's 50-50. गाइडेंस तो कुछ नहीं है आदित्य. ठीक है, let's begin this session, है ना? ठीक है. So how was this week? कैसा रहा ये हफ्ता? So I tried to improve, but not that much productive. I can give the reasons कि मैं थोड़ा ट्रांसफर हो रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा बिजी चल रहा था, बट ऐसा कुछ है नहीं. अच्छा. ठीक है. तो था ही, but the only thing because of which I am happy is that whatever my mindset is, so through are these conversation and through that Google Sheet, I am able to deliver that thing to you. That what is my perspective, how I spend my day. So eventually this thing will help me. So for that particular part, I am happy that we are tracking each and everything. So sometime we will get to the exact points where I am lacking and what are the reasons. ठीक है. Well, let me point out the positives that happened this week. है ना? पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं आपकी बार. हाँ. So we set a target of revision, है ना? And you were able to complete that target. Correct. भले ही वो एक दिन लेट हुआ हो, क्योंकि हमने 4 दिन का गोल सेट किया था. Correct. लेकिन 5वें दिन ही सही वो हुआ कंप्लीट. Correct. और मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड. करेक्ट. क्योंकि पिछला हफ्ता जो था वो टेरेबल गया था. हाँ. है ना?
और उसके कंपैरिजन में मुझे तो ये हफ्ता जो है ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसके कंपैरिजन में। तो हाँ, उसके कंपैरिजन में तो बढ़िया भी है, करेक्ट। उसके कंपैरिजन में इसीलिए भी अच्छा है ये हफ्ता कि नॉट ओनली वर यू एबल टू कंप्लीट योर रिविजन इन 5 days, you have also started the second cycle of revision within this week. करेक्ट। आपकी बार 3 दिन का टारगेट है, आज दूसरा दिन है। हाँ हाँ। टेल मी, हाउ वाज योर डे? आज कैसा था? So today mainly my day went in like today I organized a small get together for my colleagues. So my whole day went in that. ठीक है। So after that we went for running and did some exercise. So my whole day got finished in these things today. अच्छा, ठीक है। So you haven't been able to do anything substantial as far as your studies are concerned, है ना? Correct, correct. ठीक है, कोई बात नहीं। Every transition brings some amount of dishevel and disruption in your regular life, है ना? Correct. That is understood. कोई issue नहीं है। And the reason why I will not reprimand you for this is because this is a very very good change, very positive change, and I do not want to ruin this for you. है ना? ठीक है। But at least we have one achievement in our case, है ना? एक अचीवमेंट तो है, ठीक है। इसके अलावा हाउ यू फीलिंग? कैसा लग रहा है सब? Yeah, I am feeling good, and I just wanted to add one more thing that I guess we have completed all our targets of this particular March month. So I just wanted to point that out too. ठीक है, but I did. Very nice. It's good that you feel such good things about this month. पर हाँ, एक चीज जो है जहां तक मुझे याद आ रहा है, when we started, your primary concern was, Aditya, कि through this study session, है ना, and in pursuit of completing your course, आपका ये टारगेट था कि आपको इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। और अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब जो आपने डिसाइड किया था वो ये था कि यू शुड बिकम कंफर्टेबल विद ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इन दिस कोर्स, है ना? तो क्या आप वो हासिल कर पाए इस महीने? Theoretically, I guess I am comfortable with all the terms, but just need some practical exposure. So for that particular thing, I am looking for certain things that how I can get that practical exposure. But theoretically, I feel that I am comfortable. ठीक है। Well, ये कोर्स भी तो थियरी बेस्ड ही है ना। There are no practicals in it as of now, because practicals तो फील्ड में मिलेंगे, practical experience तो इस कोर्स की बात करते हैं। How satisfied are you with your progress regarding this course? Were you able to get through the content as well as you wanted? और दूसरी बात जो मुझे पूछनी है वो ये कि जो रिटेंशन का या फिर जो समझ का जो एक इशू था कि पुटिंग इट इन योर टर्म्स कि मुझे ये चाहिए कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाऊं, है ना? तो वो सब चीजें हो पाई क्या? I feel not 100%, but like now I'm grabbing all the concepts and on that particular path to learn all the required things, because mugging up all the things is also not necessary. What I felt like understanding is more important. So theoretically, I guess I understood most of the things which was covered in this particular course. But now I am looking for some practical approach. Like my domain is different, so I have to find certain ways to got that practical exposure. 50% of my
work is done in which I got the theoretical exposure. But for practical exposure, I need to figure out certain things that how we can get that practical exposure. Sure. लेकिन मैं फिर से उसी पॉइंट पे लेके आना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो आपके इस कोर्स का पार्ट नहीं था ना, तो दैट वाज आउट ऑफ आवर टारगेट फॉर नाउ, इस महीने का, है ना? तो मैं उसी चीज के बारे में जानना चाह रहा था. एनीवेज मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, सम इट अप इन अ वे बाय टेलिंग मी कि हाउ कॉन्फिडेंट हैव यू बिकम रिगार्डिंग दिस कोर्स. In terms of confidence, I can say 60%. हाँ ठीक है, मतलब ये कि थियोरेटिकली स्पीकिंग कि आज अगर लेट्स से कि एग्जाम हो जाता है ऑडिट का, है ना, तो विल यू बी मच मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन टू व्हाट यू फेल्ट अर्लियर राइट इन द बिगिनिंग, है ना? बल्कि अभी तो एक ही रिवीजन पूरा हुआ है. करेक्ट. तो जो 40% गैप बचता है ना आदित्य, है ना, तो आई थिंक वो इसीलिए भी बचता है कि वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ डेज दिस मंथ. करेक्ट. है ना? इनफैक्ट इसी वीक अगर हम देखें तो अगर आज को भी हम मिला लें तो भी ऑलमोस्ट 2 days ऑफ इनएक्टिविटी, है ना? करेक्ट. और इसके अलावा जो पिछला हफ्ता था और उसका जो एंड हुआ था, है ना, दैट डे वाज आल्सो अनप्रोडक्टिव फॉर यू. करेक्ट. ठीक है, कोई बात नहीं. बट वन थिंग विच आई वांट टू रीइटरेट इज आदित्य, जो हमने पिछले भी वीडियोस में बात की थी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू एक्सपोज योरसेल्फ टू दिस इंफॉर्मेशन, है ना, उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे इस इंफॉर्मेशन, इस कोर्स के साथ. अभी आपका पूरा एक्सपोजर ही अगर हम पूरा टोटल करें तो वो 2 times है सारा ही, पहली रीडिंग और पहला रिवीजन. दैट इज योर होल एक्सपोजर, है ना? करेक्ट. ठीक है. तो व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? अब ये जो आने वाला महीना है, what targets do you want to set for yourself and what do you expect from this coming month? For this upcoming month, in terms of studies, my target will be to get more familiar with this certification. Like right now I am on 60%. For next month I want ki when we will discuss on 30th April or 1st May, so at that time I want कि I am 100% comfortable with this. ठीक है. और उसके लिए how many revisions are you targeting? How many exposures are you targeting? I didn't decided anything. I think that if you will decide that will be more beneficial. ठीक है. Because we have one more thing that like right now I am relocating to Pune. So we need to consider that aspect also, because I will be going through certain trainings there. Yes. So I will be somewhat busy and settling in new place. Sure. So should we take it as कि आने वाले समय में करीब 10 दिन या 12 दिन जो है वो आपके रिलोकेशन में और ट्रेनिंग में चले जाएंगे, है ना? करेक्ट. तो हमें उसी हिसाब से फिर अपना टारगेट सेट करना चाहिए बाय कीपिंग इन माइंड द रेस्ट ऑफ द 18 days. करेक्ट. ठीक है. तो अगले महीने का हम 18 दिन का टारगेट सेट करेंगे. ये and for those 12 days also we can like decide कि we have to read for 30 minutes. Sure. Sure. मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 18 दिन है और उस हिसाब से अपना एम्बिशन या अपना गोल सेट करेंगे. ठीक है. और उसे परस्यू हम उन दिनों में भी करेंगे जिन दिनों में आप ट्रेनिंग के बावजूद अगर समय निकाल पा रहे हो तो. करेक्ट. व्हाई? बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेनी डे के बारे में बात की है. करेक्ट. तो हमें पता है कि चलो हम 12 दिन तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं अपने महीने से,
कि ठीक है वो दिन तो जाने ही वाले हैं, बट उसके बावजूद कुछ और भी तो दिन ऐसे हो सकते हैं जब कोई इमरजेंसी आ जाए। करेक्ट करेक्ट। तो हो सकता है हमें वो 18 दिन भी पूरे ना मिले, है ना। करेक्ट। भाई हो सकता है वर्कलोड ज्यादा हो जाए बिकॉज यू आर चेंजिंग इनटू अ न्यू रोल। करेक्ट। ठीक है। सो आदित्य, लेट्स कीप इट रैशनल। पहले मुझे ये बताओ कि जब हमने इनिशियली ये टारगेट सेट किया था कि यू शुड बी एबल टू डू इट इन 5 days, है ना। हाँ 5 दिन का हमने टारगेट सेट किया था। सो हाउ कॉन्फिडेंट वर यू कि आप 5 दिनों में से खत्म कर लोगे? In 5 days I can easily cover all the chapters. वो तो अब कह सकते हो ना, क्योंकि आपने इसको 5 दिन में कवर कर लिया है, और वो भी सेकेंड अटेम्प्ट पे। इससे पहला जो रिवीजन का अटेम्प्ट था जिसमें हमने 5 दिन का टारगेट सेट किया था, मैं उसकी पूछ रहा हूं कि उस समय कितना कॉन्फिडेंस था? लग रहा था कि 5 दिन कम पड़ेंगे या फिर कुछ रश रहेगा, ऐसा कुछ था क्या? I was like 50% confident at that time कि 5 दिन में कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। But after completing that in 5 days, I feel that I can cover that easily in 5 days. मतलब अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इनिशियली जब हमने टारगेट सेट किया तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अनकंफर्टेबल, और शुड आई से डाउटफुल फॉर यू कि 5 दिन में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ। Only till the point you actually did it. करेक्ट। तो यहाँ हमने एक बिलीफ तो ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एक डाउट को खत्म किया और एक नया बिलीफ बिल्ड हुआ हमारा कि इफ वी पुश आवर सेल्फ, अगर हम अपने आप को पुश करते हैं तो इवन जो सीमिंगली इम्पॉसिबल डेडलाइंस होती हैं हम उनको भी अचीव कर सकते हैं। करेक्ट, है ना। हाँ। इसीलिए मैंने ये 3 दिन का जो अब सेकंड रिवीजन होने वाला था, इसका मैंने 3 दिन का डेडलाइन सेट किया था। बट कंसिडरिंग योर कंपल्शंस एट द मोमेंट, तो मुझे लगता है कि आई थिंक कल का भी दिन थोड़ा सा बिजी रहने वाला है ना। हाँ। सो आई थिंक ये 3 दिन वाला टारगेट तो अभी अचीव नहीं हो पाएगा। So what you should do is you should try to complete this second round of revision within next 4 days or 5 days. Okay. और ये 5 दिन का like 31st March. आज 27 हो गई है। You should be able to complete it till 1st of April, और अगर एक और दिन का मैं रिलैक्सेशन दे दूं 2nd of April, because you will be relocating, है ना। और ये 5 या 6 दिन का ड्यूरेशन या विंडो में इसीलिए दे रहा हूं आदित्य, बिकॉज नाउ यू आर समवट फेमिलियर विद द सिलेबस। करेक्ट, है ना। और एक और जो अच्छी चीज मैंने नोटिस की वो ये कि यू हैव स्टार्टेड टू रिवाइज इट रैंडमली एंड नॉट इन सीक्वेंस, है ना। जैसे कि जो 13 क्लासेस हैं, तो मैं देख रहा था शीट में, द वे यू हैव स्टार्टेड टारगेटिंग दिस इज कि ठीक है 1st क्लास 3rd क्लास या 5th क्लास में आज निपटा दूंगा, है ना। और उसके बाद 6th 8th 9th जो है वो मैं बाद में निपटाऊंगा, या उसमें बेसिकली आप रेंडमाइज कर रहे हो इसको, है ना। तो अब की बार मैं आपको यही चीज सजेस्ट करने वाला था, बट यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ ऑलरेडी, है ना। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट इसके पीछे का मैं एक छोटा सा रीजन समझा देता हूँ। वो ये कि हमारा सबसे बड़ा जो एनिमी होता है ना रिवीजन में, वो बोर्डम होता है। हम बोर हो चुके होते हैं उसी कंटेंट को पढ़ के, है ना। करेक्ट। और उस बोरियत को ब्रेक करने का तरीका यही होता है कि हम उस सीक्वेंस को ब्रेक कर दें। जरूरी नहीं है कि हम पहले चैप्टर से रिवाइज करना शुरू करें और फिर 13th तक जाएं। करेक्ट। हम रैंडमली 13th भी पिक कर सकते हैं, उसको रिवाइज करने के बाद हम 5th पिक कर सकते हैं। जब हम ऐसे रैंडमली चलेंगे तो वो बोर्डम ब्रेक करेगा, मोनोटोनी ब्रेक करेगा, करेक्ट, है ना। तो वो सेम चीज यूज करना अपने ये आने वाले 5 या 6 दिन के साइकिल में, ठीक है। एंड आई एम फिक्सिंग इट फॉर 6 days,
स्टार्टिंग Okay. फ्रॉम टुडे। 6 दिन का मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल रीसेट योर गोल, इवन दो यू डिड कंप्लीट अ टारगेट yesterday, है ना? सो हाउ मेनी क्लासेस वर यू एबल टू कंप्लीट yesterday? About 3? I guess 4. 4 classes. Oh, nice. You were able to complete 4 classes in a day. So you are only left with how many? 9 9. classes. 9 classes. फिर तो यार 6 दिन तो आदित्य ज्यादा हो जाएंगे यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट इन 4 days. What do you say? हाँ, like I was saying that till 31st I will complete. ठीक है, 31st of- ठीक है। 31st का टारगेट रखते हैं फिर। 31st ऑफ मार्च को सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा रिविजन का, है ना? ठीक है, परफेक्ट। तो 31st मार्च को जैसे ये खत्म करोगे तो मैं आपको अप्रैल का जो है आपका टारगेट बता दूंगा, है ना? जो भी मैं चार्ट आउट करूंगा, तो उसके बाद हम उस चीज पे काम करेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा अप्रैल में आपके पास 18 दिन ही है। ओके। ठीक, अच्छा, ठीक है। एनी इश्यूज दैट यू आर एनकाउंटरिंग व्हाइल रिवीजन? I feel that right now, as I am busy with certain other things also, so because of that, I'm not able to be consistent. But that are not issues. So I feel that when I will settle down in 5 to 7 days, I will be on a proper track again. So I just want to wait for some time. नहीं, कंसिस्टेंसी का तो वो हम समझ चुके हैं उस चीज को। तो अभी आने वाला भी कुछ समय डिस्टर्ब रहेगा ही। कंसिस्टेंसी के अलावा मैं पूछ रहा हूँ कि आपको रिवीजन करते समय जैसे कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, जैसे हम शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे, यू वर एक्सपेक्टिंग कि मैं पढ़ूंगा और मुझे सब याद हो जाएगा, या फिर सब मुझे समझ में आ जाएगा एक बार में, या इस तरह की कुछ एक्सपेक्टेशंस अब हैं, या फिर अब वो रियलिस्टिक होती हुई आ गई हैं थोड़ी सी? हाँ, अब जैसे थोड़ा रियलिस्टिक हो गया कि नाउ आई फील कि जितनी ज्यादा बार रिवीजन होगा उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट कि एक ही बार में सारा वो याद होना चाहिए एंड ऑल, एज पर आवर लास्ट डिस्कशन। ठीक है, ठीक है। वेल, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग टू योर रिवीजन स्ट्रेटजी आदित्य, है ना? एक बार ये सेकंड रिवीजन कंप्लीट करो, ठीक है? एंड उसके बाद मैं आपको ना एक एक्सरसाइज दूंगा आपका रिवीजन इफेक्टिव बनाने के लिए। क्या है कि रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो हमें उसे समझने में तो मदद करती है, और वो हमें याद भी करने में मदद करती है, लेकिन एग्जाम में या फिर उस नॉलेज को एक्चुअल में यूजफुल बनाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है हमारा एबिलिटी टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन। करेक्ट, है ना? सो वी शुड बी एबल टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड। ओके, राइट? तो इसीलिए हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे थर्ड रिवीजन ऑनवर्ड्स। ओके। तो मैं आपको जो एक्सरसाइजेस देने वाला हूं, उन एक्सरसाइजेस में से एक एक्सरसाइज होने वाली है आपकी ब्लैंक शीट प्रैक्टिस। ओके, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको अपना सेकेंड रिवीजन खत्म करके और आपको कोई भी एक रैंडम चैप्टर या रैंडम क्लास चूज करनी है आपके नोट्स में से, है ना? ओके। और आपको एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेना है। आपको उस क्लास के बारे में या उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी बाय मेमोरी याद आ रहा है, आपको केवल उसे लिखना है, बिना देखे, जितना लिख सकते हो। 1 शीट, 2 शीट, 4 शीट, जितनी भर सकते हो उसे भरो, और हर एक कॉन्सेप्ट को
आप अपने शब्दों में ब्रेक डाउन करके उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो ऑन पेपर, जैसे आप अपने आप को समझा रहे हो वो चीज। ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। एक बार फिर जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूरी कर लो, उसके बाद फिर आप उस क्लास के पन्ने पलट के देखो ठीक है। उस टॉपिक के, और ये देखो कि उसमें छूट क्या गया है। ओके। जो जो छूट गया है उसके आगे के एक स्टार लगाओ, ताकि आप जब थर्ड रिवीजन करने लगो तो आपको पता हो कि आपको किन पॉइंट्स पे फोकस करना है। ओके। है ना? टिपिकली क्या होता है आदित्य, जो कोई एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें हम एक अपना जो कह लो कि गाइडिंग स्टार जो होता है ना, गाइडिंग स्टार के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। करेक्ट। ये किसी भी एग्जाम में इस्तेमाल करते हैं हम, है ना, कि पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें सर्व करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे। हमें उन टॉपिक्स पे फोकस करते हुए चलना है, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आपके कोर्स में थोड़ा सा जो एक चेंज है वो ये है कि आपका जो कोर्स है उसमें ये आप सर्टिफिकेशन के बाद एक एग्जाम देने वाले हो ना, इसका तभी मिलेगा सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ ऐसे सैंपल पेपर्स मिलेंगे उसके? हाँ, उसके मिल जाएंगे सैंपल पेपर्स तो। परफेक्ट, बहुत अच्छे। तो फिर हम ये थर्ड रिवीजन ऑनवर्ड्स ना ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे। एक काम करो, पहले थर्ड रिवीजन में ये ब्लैंक शीट वाली स्ट्रैटेजी लगाओ, और फिर फोर्थ रिवीजन ऑनवर्ड्स हम ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो मेरा ये टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो अप्रैल आने वाला है, अप्रैल के एंड में यू शुड बी एबल टू टेक दैट एग्जाम एंड क्वालिफाई इट। और उसके लिए हम मॉक ड्रिल्स करेंगे या मॉक एग्जाम्स करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। एंड आई विल बी कंडक्टिंग दोज एग्जाम्स। ओके। तो हम उसको सिमुलेट करेंगे उस पूरी एक्सरसाइज को। ओके, ठीक है, ठीक है। ताकि आप एग्जाम में बैठो उससे पहले एटलीस्ट आप इतने तो श्योर हो जाओ कि स्कोर कहाँ रहने वाला है, कितना आसपास हो आप उसको क्वालिफाई करने के, है ना? करेक्ट। ठीक है, तो हम ये दो चीजें करने वाले हैं आने वाले महीने में। ठीक है, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि अब हम एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच रहे हैं इस सफर के। ओके, ठीक है। और मेरी कोशिश है कि जो अगला महीना है आदित्य, उसमें आपके 3 रिवीजन्स कंप्लीट हो। ओके। तो आपके जो है इन टोटल 5 रिवीजन्स हो जाएंगे, प्लस आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना, ब्लैंक शीट वाली या रिकॉल करने के लिए, प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ये रिवीजन्स होंगे। तो उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी दे लेंगे, है ना? तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं। तो ये कुछ बहुत ज्यादा एम्बिशियस लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ओवरवेलमिंग होने वाला है ये? नहीं, ठीक लग रहा है ना सुनने में? हाँ, ठीक है। परफेक्ट। इजी तो नहीं होने वाला है, लेकिन हल्का फुल्का चैलेंज भी अच्छा है। हाँ, वो रखना भी जरूरी है ना? करेक्ट। ठीक है। तो अच्छा, एनी अदर इश्यूज दैट यू आर एनकाउंटरिंग? नहीं, राइट नाउ देयर आर नो अदर इश्यूज, ऑल ओके। ठीक है, वेल, तो अगर जैसे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स जो देख रहे हैं इसे, ओके, हाउ वुड यू वांट टू सम अप दिस एंटायर मंथ, है ना? अपने इस पूरे महीने को एक बार सम अप करो, उन्हें ये समझाने के लिए कि आपने शुरू कहाँ से किया था, आज किस पोजीशन पे खड़े हो, और एकदम पिन पॉइंट करने की कोशिश करना उन चेंजेस को जो अपने भीतर आपने एक्सपीरियंस किए हो या नोटिस किए हो, है ना? और
इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके मेंटल मेकअप पे, ठीक है? तो पहले ये वाली Okay. चीज मुझे बताओ। ठीक है. So I will start from the starting that when we started this course, हम्म what I feel is that when you are tracking all your days, so because of that tracking you are able to pinpoint that on what day what was your mindset, हम्म because it is not possible like for me to be 100% motivated like for all those 30 days. हम्म So because of that tracking and like as we both are talking, हम्म so the main thing which helped me is that like now I know that what I am doing. हम्म Like on March, what was my situation? On 15th March, what was my situation? Where I am lacking. हम्म So that tracking part is helping me there. Then secondly, as you are cross-checking that tracking sheet also on the daily basis. So I feel that there is someone who is there to check my progress and to guide me according to that and to motivate according to that. So because of that particular thing that rainy days, like जो 10-15 दिन का रेनी डेज हो सकते थे वो 2 या 3 दिन की हुए. So this is also a very crucial thing. And apart from that, when we are discussing in the meetings, so because of this meeting I get a different perspective about certain things, that how to do revision, how to pursue things. So because, and I want to conclude all this in one line, so I can say that this is helping me in changing my mindset about everything, that what is the correct procedure to achieve anything. So I'm learning that particular thing. ठीक है. अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी आदित्य कि हाउ टू यूज हेट्रेड एंड एंगर टू योर एडवांटेज. हाँ है ना? और इस हफ्ते जो है मैं एंट्रीज चेक कर रहा था एंड यू डिड राइट एट वन प्लेस दैट आदित्य यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, है ना? हाँ. You did write about procrastination and you said that you hate this word, procrastination. है ना? So tell me about that feeling. How did you feel about writing down these procrastinating episodes? So as I was not able to follow that completely because I wrote only one time. So while writing that, I felt that okay, I am aware that I am procrastinating. But at the same time, I also realized that I am lazy also. So that's why I didn't write after that. उसके बाद नहीं लिखा वो. Because of laziness, I didn't wrote that. नहीं, पर एक चीज है आदित्य. So I got the clarity. क्लैरिटी आई एम श्योर मिली होगी, बट एक चीज जो अच्छी हुई ना वो ये कि जिस दिन ये चीज लिखी ना कि यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, उसके बाद अगले 2 या 3 दिन अच्छी परफॉर्मेंस रही है. हाँ, correct है ना? तो उसके पीछे क्या मेंटालिटी रही? मतलब ऐसा सच कुछ नहीं है. What I feel is that कि right now I am not that much focused and all. तो उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही, एंड आई एम अवेयर कि वो आ इसलिए नहीं पा रही बिकॉज आई एम नॉट 100% डिसिप्लिन्ड फोकस्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. तो उन सबको मैं मतलब एज ए एक्सक्यूज ही कंसिडर करता हूँ. बट बिकॉज आई एम इन अ जर्नी, सो मैंने कि एक बार स्टार्ट किया है तो after some period of time definitely I will get that discipline and I will be more focused. बिल्कुल सही बात. I'm focusing on that journey part कि like right now I did the revision, but वो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है. I revised just to write yes in that sheet की revision हो गया है.
but I will not take that in a negative manner because at least I am trying and trying to complete tasks. So slowly and gradually that will improve. एक जो अच्छी चीज है ना आदित्य, देखो भले ही है ना एफिशिएंसी अभी डाउन हो या फिर ऐसा महसूस हो रहा हो कि मैंने केवल लीपा पोती करने के लिए और बस फॉर्मेलिटी सी कर दी रिवाइज करके, बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यू वर अ मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर अर्लियर और अगर उस स्टेज से आज आप इस जगह पे हो कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हो अपनी आदतों से लड़के, अपने खुद के दिमाग से लड़के उसके अगेंस्ट जाके, है ना, और आप अपनी चेयर पे बैठ रहे हो और आप अपना काम निपटा रहे हो, भले ही उसकी एफिशिएंसी 60% हो, दैट इज स्टिल अ प्रोग्रेस. करेक्ट. और उसी का नतीजा है कि 4 महीने से जो कोर्स लिया हुआ था और पूरा नहीं हो रहा था, उसे इसी महीने में पूरा भी किया, शुरू से लेके एंड तक. करेक्ट. और रिवीजन भी कर लिया उसका, और इनफैक्ट सेकंड रिवीजन भी शुरू कर दिया उसका. करेक्ट है ना. सेकंड रिवीजन में भी यू आर डन विद 33% ऑफ द सिलेबस. करेक्ट. तो यार ये तो मैं तो कहूंगा कि दिस इज कमेंडेबल बिकॉज यू आर एक्चुअली फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन हैबिट्स, है ना. You are fighting against your lower self. Correct. And I also feel the same. Like there can be only one difference that as right now my efficiency is low because whatever the reasons are. But so the only difference is कि जो चीज 3 बार रिवाइज करके अच्छे से हो सकती है, बस वो डिफरेंस ही है ना कि वो चीज मेरे को शायद 100 बार रिवाइज करूंगा तब होगी. नहीं, 100 बार तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट जो 3 बार हो सकती है वो शायद 5 बार में हो, इतना फर्क पड़ सकता है. 100 बार तो नहीं यार. कंसिस्टेंसी ना कि वी आर डूइंग दैट रेगुलरली, तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंद करके साइड में रख देने से अच्छा है कि 2 दिन ना हो लेकिन तीसरे दिन. एंड आई ऑल्सो वांट टू ऐड वन मोर थिंग दैट द मैसेजेस व्हिच आई रिसीव फ्रॉम योर साइड, सो दैट आल्सो हेल्प्स मी to be motivated because at every time I feel that I am accountable to someone. I have to give response to you whenever you will ask what is your progress and all. So that is also the reason because of which I am doing revision and all. Though for a very small time, but I am doing. True. Just to say कि I have revised all the classes. Though I revised all that in half an hour or 1 hour, but revision is important. आदित्य रिवीजन ऐसे ही होता है यार. टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिवीजन का मतलब क्या है अगर आप इस शब्द को ब्रेक डाउन करोगे, है ना. रिविजन दोबारा देखना. करेक्ट. दोबारा पढ़ना नहीं है. अगर दोबारा पढ़ना होता तो इसे री रीडिंग कहते ना, रिविजन क्यों कहते. करेक्ट है. सच बात है ना. करेक्ट. तो रिवीजन ऐसे ही होते हैं मेरे भाई. रिवीजन ऐसे ही होते हैं कि आप स्पीडीली कम समय में जल्दी से उस कंटेंट को एक बार देखते हो जो आपने पढ़ा है और उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हो और उस इंफॉर्मेशन को आप यूं समझो कि चू करने की कोशिश करते हो, चबाने की कोशिश करते हो कि ठीक है इसको और कितने डायमेंशन से मैं एब्जॉर्ब कर सकता हूं. करेक्ट. है ना. और किस तरीके से इसे प्रोसेस किया जा सकता है या अप्लाई किया जा सकता है. राइट. वही रिवीजन है. अगर आप उसे वर्ड बाय वर्ड दोबारा से पढ़ने बैठ गए तो वो रिवीजन नहीं है, वो री रीडिंग है. करेक्ट है ना. करेक्ट. ठीक है. अब एक काम और करना. थर्ड रिवीजन जो है इसमें जब आप शुरू करोगे, सॉरी ये जो सेकेंड रिवीजन अब आपने 4 क्लासेस कर दी हैं, बाकी क्लासेस आपको खत्म करनी है, तो अब से शुरू करना है यानी कल से कि जो भी आप रिवाइज कर रहे हो और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या टर्मिनोलॉजीज दिखे उनको सर्कल करते चले जाना अपने नोट्स में ही. उनको सर्कल इसीलिए करना ताकि जब दोबारा से रिवीजन करो, रिवीजन,
तो तुरंत जब वो पन्ने पलटे जाएं तो वो सर्कल्स में जो कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुरंत दिखने चाहिए पेज में हाईलाइटेड से। करेक्ट है, ओके, है ना? ठीक है। हाँ, तो उसी आधार पे आप तुरंत रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि ठीक है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। तो बीच के जो गैप्स हैं वो आप अपनी मेमोरी से फिल करना शुरू करोगे। करेक्ट। और जब उसे अपनी मेमोरी से फिल करना शुरू करोगे तो आपका रिकॉल जो है वो इफेक्टिव होगा, आपका रिटेंशन भी बढ़ेगा। हाँ, है ना? तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी आपकी। करेक्ट हो गया। तो इस चीज को ना आप विदाउट फेल अप्लाई करना। ठीक है ना? अच्छा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तो बात हो गई कि मेरे मैसेजेस या जो मैं जवाब मांगता हूं उनसे एक पुश बना रहता है। टेल मी अबाउट योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अंदर हालात कैसे हैं मन में? मन में इज लाइक राइट नाउ आई डोंट हैव दैट मच क्लैरिटी फॉर नाउ, so that's why my thoughts are always wandering somewhere. But what I feel is कि अभी क्योंकि हम एक proper path follow कर रहे हैं through that sheet, through our discussions and all, so slowly and gradually all those things are coming in a line because we have already decided that what we have to do in this particular month. So because of that I get that clarity कि अभी ये चीज डिसाइड किए तो मैक्सिमम जो है इस मंथ में यही हो सकता है। So I am getting that realistic outcomes कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है और कम से कम क्या हो सकता है। ठीक है। So this is something which is helping me to channelize कि अभी मैं यही काम कर रहा हूँ तो इसी के अंदर मेरे को रिजल्ट मिलेगा, या तो मैं बहुत अच्छे से समझ जाऊंगा या थोड़ा कम अच्छे से समझूंगा। ठीक है। तो एवरीथिंग रियलिस्टिक, वो मतलब वो वाला स्कोप नहीं है कि मैं 4 काम एक साथ कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग ओनली 2 things राइट नाउ, लाइक वर्किंग ऑन माय फिटनेस एंड डूइंग दीस क्लासेस। सो बिकॉज ऑफ द ट्रैकिंग सिस्टम, बिकॉज ऑफ आवर डिस्कशन, सो नाउ आई एम अवेयर कि व्हाटएवर आई विल get results, so I will be getting results in particular these 2 domains because I am only working in these 2 domains. So internally this is helping me to channelize कि वो 4 जगह दिमाग जाता नहीं है। ठीक है। और अंदर से जैसे मन में विचार आते हैं कि यार, जैसे हम कभी कभी पॉजिटिव सिनेरियोज को इमेजिन करते हैं ना, खाली बैठ के जो हवाई किले बनाते रहते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के बारे में, कभी कभी वो बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे लिए ना, क्योंकि जब हम अपने चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट पूरा होने के बाद हमें क्या मिलेगा उस चीज से, या हमारी सक्सेस कैसी होगी, तो वो हमें पुश करने में मदद करता है। वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है हमारे अंदर, है ना? तो जो मैं जानना चाहता हूं वो ये कि डू यू फील अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट, या ऐसा कुछ कोई भी ऐसा इमोशन जो हर बार जब आप अपनी टारगेट अचीव करते हो और उसे फिनिश करते हो तो आप महसूस करते हो कि यार ठीक है, मैं अपने गोल के और एक कदम पास आ गया हूँ, या फिर जो एक वो बच्चे जैसी थोड़ी सी ईगरनेस होती है कि यार ठीक है, आई एम मच क्लोजर एंड प्रोबेबली विद इन दिस मंथ और मे बी नेक्स्ट मंथ आई विल बी एन ऑडिटर। ऐसा कुछ महसूस होता है क्या? In this particular thing I want to add कि when I am like right now I'm doing I'm working on my physical fitness from past 40 to 45 days without escaping a single day. ठीक है। So because of that continuity in this particular aspect I feel that okay, in 2026 I want to transform my physique. So because I am very consistent and doing this on the daily basis, so for this particular aspect I sometimes I think that okay, after 3 months I want to achieve this type of body, then in 6 months this type, and after 1 year this will be my ideal physique which I wanted. But in terms of study I feel that I'm not that much consistent. तो वो consistency रहती नहीं है, तो उसकी वजह से वो इतने इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड इतना
चीजें वो हवाई के लिए बनते नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टडी ये चीज जरूर मैं सोचता हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स एंड आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड इन टॉप कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीज टाइप ऑफ कंपनीज, आई विल बी जॉइनिंग टेरिटोरियल आर्मी। तो वो चीज जरूर मैं सोचता हूँ कि इसी के साथ साथ करते करते, क्योंकि धीरे धीरे और वापस वो पढ़ाई के अंदर एक कंसिस्टेंसी बनेगी, तो फिर वो मैं चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो टेरिटोरियल आर्मी वाला एग्जाम देना है फिर वो, बिकॉज एसएसबी सेम फॉर SSB, you are clearing it at the age of 20 or at the age of 30, that doesn't matter. So that is something which is there in my back of the mind, that I will become consistent in studies, then I will clear the territorial army exam in first attempt, and then I will go for the SSB, then I will get recommended. And in territorial army, this is the norm of government that you will be working for a private organization, and whenever the forces will call you, you will join the forces. So in every year I will be joining for 2-3 months. That is mandatory. I can also join more than that. So this is my master plan in studies, but right now I'm on the step 1. So that's why I don't was the last step. And in physical fitness I'm already like consistent from past 40 days. So that's why I feel confident कि हाँ ये तो सही चल रहा है. But in studies I'm not that much focused and consistent. तो first I will become consistent, focused. तो फिर वो जो आप बोल रहे थे ना हवाई के लिए और, तो वो थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा और ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक जब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ सब चीजें ठीक चल रही है, एक लाइफ चल रही है, तो तब उस डायरेक्शन में सोचने में थोड़ा अच्छा लगता है लाइफ. अभी तो ऐसा है ना कि अभी ज्यादा सोचने में थोड़ा गिल्ट वाला पार्ट रहता है कि भी मेहनत कर नहीं रहे कि मेहनत कर नहीं रहे हैं और सपने एसएसबी के ले रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ अभी तो वही चीज है ना कि अभी तो नॉर्मली अपना इतना फोकस है नहीं. बट है ना, आई वांट टू स्टॉप यू हियर आदित्य. मैं इसीलिए रोकना चाहता हूँ कि है ना, सी भले ही है ना एसएसबी का सपना अभी दूर लग रहा हो, पर एसएसबी की बात करते ही ना चेहरे पे भाव बदले, विच मीन्स इट मेक्स यू एक्साइटेड, है ना. ये एक्साइटेड तो ये करता है एसएसबी वाला जो गेम है ना. है भले ही लॉन्ग शॉट, है ना, थोड़ा समय है अभी उसको अचीव करने में, बट ये एक चीज है जो अपनी तरफ खींच रही है. तो मुझे लगता है कि ये ऑडिट वाला कोर्स कंप्लीट करना और ये सब तो शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं है उस गोल के सामने. तो कोई बात नहीं, इसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह समझो और इसको जल्दी से फिनिश करके जस्ट गेट डन विद इट, सो दैट यू कैन फाइनली मूव ऑन टुवर्ड्स दैट ड्रीम ऑफ योर्स. करेक्ट है ना. हाँ तो बढ़िया है और अच्छी बात है. ये चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट होना चाहिए. हम पता नहीं क्यों जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, हम एक्साइटेड होना ही भूल जाते हैं किसी चीज के लिए. मेरे को अच्छे से याद है जब है ना बचपन में कोई ऐसी छोटी सी भी चीज मिलने वाली होती थी ना कि अरे यार कल नए जूते खरीदने जाएंगे, नए जूते मिलेंगे, मैं सारी रात नहीं सो पाता था भाई, है ना. मैं सच में सारी रात नहीं सो पाता था. मैं ये सपने लेता कि अच्छा कैसा कलर चूज करूंगा मैं, है ना. उसमें भाई अच्छा ब्रांड के बारे में तो कुछ नहीं पता था उस समय. एडिडास आज भी बोलना नहीं आता है ठीक से, उस समय तो भूल ही जाओ कि वो स्पेलिंग पढ़ लेंगे हम, है ना. ठीक है. तो भाई गजब एक्साइटमेंट होता था. एक दिन गलती से कि मेरे मम्मी पापा ने बता दिया कि भाई साइकिल दिलवाएंगे यार तेरे को, सोच रहे हैं साइकिल दिलवा देते हैं. ओ भाई मैंने जो सपने लिए 1 महीने तक, है ना, कि कैसी साइकिल लूंगा, ऐसी दिखेगी वैसी दिखेगी, अपने ही आप से हवाई किले बनाए जाओ. सेम चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट जो है ना हमें थोड़ा बहुत तो जवानी में भी रखना चाहिए यार. करेक्ट भैया. मैं तो चाहता हूँ कि है ना दिन में भले ही चाहे 5 मिनट निकालो, डेडिकेटेड 5 मिनट, बट अपने आप को ना उस ऑलिव ग्रीन में इमेजिन जरूर करना है ना. जो टेरिटोरियल आर्मी की यूनिफॉर्म है उसमें जरूर इमेजिन करना है. करेक्ट है ना. एंड जस्ट फील दैट यू नो थॉट जो है ना वो उसको बीज से और पौधा बनते हुए महसूस करो अपने अंदर. करेक्ट भैया.
तो दैट विल सर्व एज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो उसके बाद मेरे जो मैसेजेस हैं आदित्य, उनकी अहमियत अपने आप घटती चली जाएगी, क्योंकि अंदर से इतनी आग पैदा होगी ना इस चीज के लिए कि वो बाकी सब शोर को मिटा देगी। करेक्ट करेक्ट। और बाकी सब चीजें उसके आगे मीनिंगलेस लगने लगेंगी। है ना? करेक्ट। तो अच्छा है यार। बल्कि यू नो व्हाट यू शुड डू आदित्य, यू शुड टेक अ डायरी, प्रॉपर डायरी। एक अच्छी डायरी में इन्वेस्ट करना, जो लेदर बाउंड हो या जैसा अच्छा लगे, ठीक है? एक अच्छी डायरी और एक अच्छा पेन, और उसमें आप केवल है ना अपने ये विजन लिखो अभी। गिव मी अ रफ आइडिया, ठीक है? वो रफ आइडिया मुझे इस चीज का दो कि लेट्स से ये ऑडिट वाला जो मैटर है ये अगले 3 महीने में पूरा सिमट जाएगा, ठीक है? एंड लेट्स से कि अगले इन 3 महीनों के बाद अगले जो 4 या 5 महीने हैं, यू विल गेट अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी एंड अ मच बेटर प्लेसमेंट इन सम अदर कंपनी, है ना? तो ये जो पीरियड है ये 7-8 महीने का पीरियड हो गया पूरा। हाँ। उसके बाद यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर SSP। करेक्ट, है ना? तो यही है ना रफ टाइमलाइन, या फिर क्या प्लान्स हैं इस चीज के बारे में? अभी like right now I'm doing this certification. So while doing these type of certification, I realized that these certifications are not that much different. That much difficult. So like right now what I'm thinking is कि ऐसी आदत बनानी कि रोज 1 घंटा इस टाइप के सर्टिफिकेशंस को मैं दे पाऊँ। ठीक है। Like every day I'm investing 1 hour in these type of certifications कि ये complete हो गया, फिर दूसरा certification किया। So for my private sector journey, I am contributing for the organization because I am studying daily for 1 hour. This is more than sufficient. After that, as I have developed that habit of studying for 1 hour, so I will increase that habit to 2 hours, 3 hours. So for those 2 hours or 3 hours, I will prepare for that TA written exam first. हाँ, बट मैं उसी का ही एक रफ टाइमलाइन चाह रहा हूँ ना कि हाउ डू यू इमेजिन इट, कि कितने समय में करना है, लगभग अब से साल भर में करना है, 1.5 साल में करना है, वही जानना चाह रहा हूँ मैं। I don't have that clarity right now कि कितना टाइम लगेगा या कितने टाइम में करना है। क्लैरिटी नहीं है, बट एक रफ टाइमलाइन बनाओ। ओके। वो रफ टाइमलाइन इसीलिए बनाओ कि क्लैरिटी अभी नहीं है, लेकिन उसको चेज करते करते आ जाएगी। फिर then we can say कि अभी ये वाला सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, after this I will do a security plus. ठीक है। And after doing that I will start preparing for this TA. ठीक है। You can say that after 6 months I will be preparing for this. ठीक है, तो अपनी वो एक डायरी लेना है ना, और हाँ, उसमें लिख देना। और मैं इस जो हमारा ये ट्रैकर है इसी में ही मैं एक सेपरेट सेक्शन ऐड कर देता हूँ, जहाँ पे हम एटलीस्ट अगले 1 साल के अपने गोल्स जो हैं उनको एक मैप करते हुए चलते हैं। ओके। है ना? क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म दोनों ही होने चाहिए। हमारे पास इमीडिएट एक्शनेबल स्टेप्स भी होने चाहिए, और हमारे पास एक विजन भी होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें जाना कहाँ है, हम जा किस दिशा में रहे हैं। करेक्ट है ना? ठीक है, तो मैं इस सेक्शन को ऐड कर दूंगा। And apart from this, I'm also thinking कि to join an activity where I get a chance to socialize with other people. Right now, I'm working in an organization, so I don't get that much exposure. So like I am moving to Pune, so I am planning to add this thing कि I will join something where I will get exposure to meet different people, talk to them, and explore. So this is also something which I am looking forward to. Sure. अच्छा आइडिया है, बिल्कुल एग्जीक्यूट करना चाहिए। एक आदमी तो वैसे भी अपने सोशल नेटवर्क के बिना कुछ नहीं होता है भाई। करेक्ट है ना? पिंजरे में बंद शेर जैसा हो जाता है। करेक्ट। So if you have any ideas regarding that, so please contribute.
sharing the I ideas. do have some ideas, and in fact, I would want you to be a part of it. Not just a part of it, but an active part of it. I'm thinking of making a Okay. community, and I will share that idea with you very, very soon. And that will not be uploaded here. Okay. है ना? And the thing is that I want to meet people offline. Like online I feel very difficult to connect with people. Sure. So is also a point. Sure. There can be many engaging activities where you'll be able to participate in them offline, and actually you'll get a chance to interact with people. Okay. बहुत सारे ideas हो सकते हैं. We'll talk about that. Okay. कोई issue नहीं है. ठीक है, then shall we end this session right here? हाँ. ठीक है, तो I will stop the recording here, है ना, यहीं रोक देता हूँ मैं, and then let's talk about one or two more aspects, है ना, which I want to talk to you about. ठीक है, तो मैं इसको recording को बंद कर देता हूँ.